And moving back to the rescue operations that have been on a war footing by both the Indian Navy and also the Indian Coast Guard since the past 3 days. Now, of course, the focus pretty much has been on the two of those barges that went adrift the Mumbai shore, and a barge and a drill vessel that went adrift the Gujarat shore. Rescue operations have been on, and unfortunately, the death toll has climbed to 38. We're picking up more and more visuals of the ongoing rescue operations, and as you can see, the rescue operations that are still being conducted by our forces, by the rescue agencies. 38 people on board the ill-fated accommodation barge P305 have been reported dead so far. The Navy still continuing search for 37 missing personnel. So far, 188 people have been rescued from the high seas. We're also picking up more reactions on the ongoing operations. Listen in. ये डिस्ट्रेस कॉल हमको करीब रात को 12 बजे पता लगा कि डिस्ट्रेस एक शिप पापा 305 है एंड हमें लोगों को बचाना है। हमने अपने क्रू को इकट्ठा किया, हम लोगों ने प्लानिंग करी कि कहाँ पर ये शिप डिस्ट्रेस में है। हम लोगों ने एरिया प्लॉट किया, उसके बाद हम लोगों ने अपना क्रू डिसाइड किया कि कौन कौन कब जाएगा। अर्ली मॉर्निंग फर्स्ट फ्लाइट में हम टेक ऑफ हो गए थे। यहाँ पर कंडीशंस काफ़ी सीवियर थी। अराउंड 50 किलोमीटर प्रति घंटा से हवा चल रही थी। जहाज़ को बाहर निकाला हमने कंट्रोल करके, एंड हमने कंट्रोल टेक ऑफ किया एंड हम एयरबॉर्न हो गए। इसके बाद ये जहाज़ अराउंड 70 या 80 किलोमीटर मुंबई की सरहद से डूबा था। हम पहुँचे वहाँ पर एंड ऑन द वे वेदर काफ़ी पैक्ड अप था, काफ़ी हैवी रेंज थी, विंड्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। हमें डिफ़िकल्टी थी हेलीकॉप्टर चलाने में, बट हमारे ये जज्बा था कि जितने हम लोगों को बचा सकें हम बचाएं। हम एरिया में पहुँचे वहाँ पर, एंड वहाँ पर एरिया में विजिबिलिटी काफ़ी लो थी एंड काफ़ी बारिश हो रही थी, एंड विद जो समुद्री लहरें काफ़ी 6 से 7 फीट तक थी। हम लोगों ने सर्वाइवर को साइट किया। अब साइट करके हम लोग सर्वाइवर के ऊपर आए। सर्वाइवर के ऊपर आने के बाद हम लोगों को एयरक्राफ्ट कोई रेफरेंस था नहीं कि हम रेफरेंस करके होवर कर सकें। हेलीकॉप्टर जो होवर करता है उसके लिए रेफरेंस चाहिए होती है। समुद्र में लहर इतनी बड़ी थी और हम सी कोस्ट से काफ़ी दूर थे, रेफरेंस थी नहीं, तो हमने बड़ी मुश्किल से हेलीकॉप्टर को कंट्रोल किया एंड उसके बाद उन्हें हम थम्स अप दिखाया कि हम आ गए हैं, आपको रेस्क्यू करेंगे। और फिर हमने कंट्रोल करके होवर करके 50 फीट पे अपने ड्राइवर को लोवर किया जो उन्हें ऊपर लेके आए एंड उसे सेफली हमने रिकवर किया। ये टास्क काफ़ी चैलेंजिंग था, ये मिशन काफ़ी चैलेंजिंग था, क्योंकि एक तो विजिबिलिटी काफ़ी लो थी, विंड्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी और बारिश हो रही थी और समुद्री लहरें काफ़ी ऊंची उठ रही थी। बट एक जज्बा ये भी था कि अगर हम एक लाइफ बचाएंगे तो एक फैमिली की लाइफ बच जाएगी, उनके माता पिता, उनके बच्चे, उनकी वाइफ, उनकी लाइफ बच जाएगी। तो उस जज्बे से हमने इन्हें रिकवर किया। हमने अब कहा कि इन्हें सेव करना है तो करना, एंड वी डिड इट। My main mission was, first of all, I was acting as the mission commander for this operation. And as soon as we got the information regarding the position of survivors and the issues they were facing, so immediately after the takeoff, we felt the weather was very marginal and the winds were very, very gusty. So, but we have been trained for that. So on reaching the area, we sighted the survivors floating in water. We could see their reaction while we were incoming, and we also felt happy that we are there in that area apart from all the challenges we were facing. Now on reaching the area, we picked up the survivors, we have lowered the diver, and as soon as we got the survivors on board, we could see the happiness in them, and even we could see that all the people who are down below, all the survivors, they were waiting for us and they were thinking that we will come, and we promised them that we will come, and we were there for them, each and every one. So all the survivors, they were stuck there for more than 16 to 20 hours, and there was scarcity of the ration and food. So apart from saving the life of the survivors there in water, this was also our main challenge and mission, to provide them all the relief materials. So we were tasked by the Navy that we have to complete this mission, and we have to make sure that they survive for more time, so that we can go and we can winch them up and take back to the base. साइक्लोन्स तो पहले भी आए हैं, पहले भी बंदे ऐसे सर्वाइवर उठाए हैं। हम लोग तो ट्रेनिंग, हमारे ड्राइवर्स है तो ड्राइवर्स की ट्रेनिंग हमारी क्या इसीलिए होती है कि जब भी कोई बंदा यदि पानी में फंस जाए तो उसको किस तरह बचाना। लेकिन ये जो साइक्लोन था
एक रात हो जाने के बावजूद भी सुबह जो समुद्र की लहरें थी इतनी तेज़ थी, बहुत ऊंची थी। तो वे बंदे जो पिछले 15-20 घंटे से सर्वाइव कर रहे थे, ये उनका भी बहुत मतलब जीने की इच्छा जिसको बोलते हैं ना, उन बंदों के अंदर वो थी। एंड उनको फिर जब पता चला कि ऐसे बंदे भाई फंसे हुए हैं, तब हम उनको लेके आए। नीचे जब जा रहे थे तो प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि सी स्टेट बहुत ख़राब थी, लेकिन पानी में लो होने के बाद जैसे बंदे 15-20 घंटे से वे सर्वाइव कर रहे थे, तो सर्वाइव करने वाले बंदे को जैसे कुछ मिल जाता है वो एकदम से थोड़ा ऊपर आते हैं। बट जैसे कि हमें पता है कैसे बंदे को बचाना है, क्योंकि जिसको मदद मिलेगी वो सबसे पहले वही करेगा, तो हम उसको अवॉइड करके देन मैं अंडर वाटर डाइव करके उसके पीछे से जाके बंदे को सर्वाइव करा था, ताकि उस बंदे को एटलीस्ट यदि मैं ब्रीथ करा दूँ जो बंदा पानी में डूब रहा है, तो सबसे बड़ी बात होती है कि बंदा रिलैक्स हो जाएगा एंड फिर कंफर्टेबली उसको ऊपर भेज देगा। तो कंडीशन इतनी ख़राब थी कि उसको अकेले लेके आ सकते थे। देन मैं उसको साथ में स्ट्रोक लेके उसको अपने साथ में देन अपनी लैब में, बिकॉज एक बंदे के पैर में भी चोट लगी हुई थी, वो अपना मूवमेंट नहीं कर पा रहे थे, तो उनको फिर साथ में लेके आना। एक्चुअली मुश्किल तो काफ़ी था, लेकिन जो बंदे पिछले 15-20 घंटे से खुद को सर्वाइव कर रहे थे, तो हमें उनको देखना था कि वे किसी तरह सर्वाइव कर रहे हैं, तो अभी उनको इमीडिएट हेल्प यही है कि उनको किसी तरह बचा के ऊपर लेके आ जाए। तो उस टाइम पे ये नहीं देखा जाता कि भाई, क्योंकि हम तो ट्रेन इसलिए हुए हैं, हमारी ट्रेनिंग ही जो इतनी लंबी होती है डाइवर्स की, वो इसीलिए होती है कि बंदा यदि मुश्किल में है पानी में तो उसको किस तरह बचाना। अब वे बंदे ऑलरेडी सर्वाइव करते, तो उनके लिए तो उम्मीद की किरण हम ही थे जैसे गए। और ये जो बंदे हम लेके आए थे, ये क्या है, अपने ग्रुप से ड्रिफ्ट हो गए थे फ्यूल की वजह से, हवा की वजह से, तो ये काफ़ी दूर दूर पहुँच गए थे। बाकी सर्वाइवर्स जो थे वो ग्रुप में थे 3-3, 4-4 के, तो उनको शिप उठा रहे थे ईजिली, लेकिन ये शिप की नज़रों में नहीं थे एंड वी वर द ओनली लास्ट होप फॉर दैट। देखिए, हमारे जो SOPs हैं वो काफ़ी क्लियर हैं, और हमें पता रहता है कि जब ऐसे कोई साइक्लोन या इस तरह की कोई नेचुरल डिज़ास्टर होने वाला है, हम उसके पहले ही रेडी हो जाते हैं। और हमें ये सारे जहाज़ जो हैं हमने रेडी करके रख लिए थे पहले से ही, और जितनी भी सर्विसेबिलिटी है और जो हमारे एयर क्रू हैं उनको हमने रेडी कर लिया था। ये बात अलग है कि जिस दिन साइक्लोन आया 17 तारीख को, जो मौसम है इतना ख़राब था कि हमारे एविएशन के लिए और एयर ऑपरेशंस के लिए बिल्कुल भी कंड्यूसिव नहीं था, क्योंकि वेदर और विंड लिमिट्स के बाहर थे। 18 मई को सुबह 6:30 बजे से जब थोड़ा सा वेदर इम्प्रूव हुआ, तब से हमारे जो जहाज़ हैं वो निकल पड़े, और एरिया में जाके जहाँ पे शिप्स ऑलरेडी थे, ये भी हमारी एक SOP है कि शिप्स के साथ जो हेलीकॉप्टर हैं उनका बहुत अच्छा तालमेल रहता है, और वो दोनों ने एक साथ मिलके कई सारे सर्वाइवर्स को बचाया। टोटली हेलीकॉप्टर्स की गिनती करें तो मेरे ख्याल से 39 सर्वाइवर्स को हमने बाय एयर ही रेस्क्यू किया है। इसके अलावा एक बार्ज में हमने तकरीबन 400 kg के आसपास राशन और पानी प्रोवाइड किया, जो कि उनके सर्वाइवल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। और इवन जब हम बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ के जहाज अभी भी सर्च एंड रेस्क्यू में लगे हुए हैं। ये सारे जो ऑपरेशंस थे बिल्कुल लिमिट ऑफ द मशीन में मैं कहूँगा लिए गए थे, और क्योंकि 18 मई को भी सुबह बहुत तेज़ विंड्स और वेदर बहुत ख़राब था। ये बात अलग है कि हम पूरे साल इसी चीज़ की ट्रेनिंग करते हैं, बट फिर भी इन कंडीशंस के अंदर ऑपरेट करना एक बहुत ही जाबाज तरीके का काम होता है। और हम बहुत खुश हैं कि इस बात पे कि हम हमारी वजह से हम जाने बचा पाए, और हम इस काम में अभी भी जुटे हुए हैं।